وائرس کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم نے کرونا ٹائیگر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لاک ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے، اس سے غریبوں کو نقصان ہوتا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، ہو سکتا ہے ہاٹ سپاٹ بند کرنے پڑے۔ محدود لاک ڈاؤن کے لیے ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی۔ کرونا رضاکاروں کو کارڈ دینے، ٹڈی دل اور بلین ٹری منصوبوں کے لیے بھی استعمال کرنے کا اعلان۔ 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی۔ پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا، جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لی تھی۔ ٹیکس محصولات میں 800 ارب روپے کمی آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، آدھا ٹیکس قرضوں کی اقساط پر چلا جاتا ہے۔ 5000 ارب روپے پچھلی حکومتوں کے قرضوں پر سود دے چکے ہیں۔ آدھے ٹیکس کے پیسے سے ملک چلانا پڑ رہا تھا۔ بجٹ میں بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اخراجات مزید کم اور آمدن بڑھانا ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیاں بڑا خطرہ ہیں۔ ٹڈی دل کے باعث قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر چھاپے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں متعدد دکانیں سیل۔ کئی دکاندار گرفتار۔ جو تاجر ماسک فراہم نہیں کر سکتا، دکان کو تالا لگا کر گھر چلا جائے۔ وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال کا 2 ٹوک موقف۔ لاہور میں ٹریفک پولیس نے ماسک نہ پہننے پر چالان شروع کر دیے۔ لاہور کے پارک کھل گئے، ماسک اور گلوز کے بغیر داخلہ ممنوع۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی کرفیو کو آج 300 دن گزر گئے۔ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے آن لائن کانفرنس۔ انسانی حقوق کے رہنما برطانوی اراکین پارلیمنٹ شریک۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا خصوصی خطاب۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی۔ شہریوں کو دوسرے مرحلے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان میں علماء کرام، سیاسی سماجی عمائدین کے ذریعے کورونا آگاہی مہم چلائی جائے۔ ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشن ہم وطنوں کی خدمت میں پیش کینسر کی پاکستانی مریضہ کی وطن واپسی کا انتظام۔ آمد و رفت کے تمام اخراجات کمیشن برداشت کرے گا۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی تحسین۔ ساؤتھ افریقہ سے تیسری خصوصی پرواز 58 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئی۔ ڈپٹی ہائی کمشنر نے اوورسیز پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ وطن واپسی کا بندوبست کرنے پر پاکستانی ہائی کمیشن کے خصوصی شکر گزار۔ اوورسیز پاکستانیوں کی گفتگو۔ فرینکفرٹ میں 9 تعینات پاکستانی قونصلیٹ جنرل زاہد حسین کی میڈیا کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی، کمیونٹی کی خدمت اور سیاسی پناہ کی درخواستوں کا جلد سے جلد حل ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 96,000 تک جا پہنچی۔ 642 افراد جاں بحق۔ جدہ شہر میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ مساجد 15 روز تک بند رہیں گی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی طلباء نے وفاقی محتسب کو خط لکھ کر وطن واپسی کی اپیل کر دی ہے۔ پاکستانی سعودی حکومت کو طلباء کو وصول کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ طلباء کے خط پر وفاقی محتسب نے متعلقہ محکموں کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ اور کراچی مبارک ولیج کے غوطہ خوروں نے ویل کے ساتھ ڈائیونگ کی پہلی بار۔ مقامی لوگوں نے کیمرے کی مدد سے زیر سمندر ویڈیو بنا لی۔ یاسر اور شہزاد نامی دونوں بھائیوں نے ویل کے ساتھ کرتب دکھائے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ राफ़ आवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि आवाम हो जाए तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कह दिया है कि कोरोना वायरस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कौम से खिताब करते हुए हॉट स्पॉट्स बंद करने का इंदिया दे दिया। जबकि कोरोना टाइगर फोर्स को टिड्डी दल के खिलाफ इंतजामिया की मदद करने की हिदायत भी जारी की। आइंदा बजट पर बड़े चैलेंजेस से भी आगाह किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। अपने खिताब में कहा, मुकम्मल लॉकडाउन से गरीबों का नुकसान होता है। हो सकता है हॉट स्पॉट्स बंद करने पड़ जाएं। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर्स की जरूरत पड़ेगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों को मुखातिब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए कायल करें। महदूद लॉकडाउन की सूरत में गुरबा की मदद के लिए तैयार रहना होगा। टिड्डी दल के खिलाफ भी टाइगर फोर्स इंतजामिया की मदद करे। कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे। हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, तो इसके लिए हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको कहेंगे कि आपने उन इलाकों में जिधर हम समझते हैं कि टिड्डी का अटैक है, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। लॉकडाउन के बायस माशी मजबूरियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमने तो मुख्तसर लॉकडाउन किया, फिर भी टैक्सेस के मद में 800 अरब रुपए का नुकसान हो गया। 5000 अरब रुपए पिछली हुकूमतों के कर्जे पर सूद दे चुके हैं। लेकिन हम हमारे मुल्क को, हालांकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमें अब तक 800 अरब रुपए का हमारा जो टैक्स है उसके अंदर कमी आई, क्योंकि बिजनेसेस बंद हो गई, हमारा टैक्स नीचे चला गया। अब तक हम 5000 अरब रुपया अब तक हम दे चुके हैं पिछले हुकूमतों की कर्जे लिए हुए उनके सूद देने। बजट बनाने में मुश्किलात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बजट में बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अखराजात मजीद कम और आमदन बढ़ाना होगी। मुल्क को आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम बजट बना रहे हैं, इसमें हम सबको एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हमें खर्चे और कम करने पड़ेंगे। हुकूमत ने अवाम का भला सोचा, लेकिन अवाम SOPs की खिलाफ वर्जियों से बास नहीं आए। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज भी कई दुकानें सील कर दी गई। मास्क न पहनने पर ट्रैफिक एहलकारों ने चालान काटने भी शुरू कर दिए हैं। वज़ीरत सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया, जो ताजर मास्क नहीं फराहम कर सकता, दुकानों को ताला लगाकर घर चला जाए। बहुत ढील दे दी, एक्शन का रिएक्शन शुरू। SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दुकानें सील, दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़कों पर मास्क न पहनने पर भी चालान शुरू कर दिए गए। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि जो ताजिर मास्क फराहम नहीं कर सकता, दुकान को ताला लगाकर घर चला जाए। अगर कोई दुकान 7 बजे के बाद खुली तो मुतालिका SHO के खिलाफ भी एक्शन होगा। लाहौर पुलिस और जिला इंतजामिया ने करीम मार्केट, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में क्रैकडाउन करते हुए 187 दुकानों को सील कर दिया। जो ये कह रहे हैं कि ताजर तंजीमों से बात हुई है, हमें मास्क नहीं दिए, मास्क हमने नहीं देने। जो ताजर मास्क नहीं प्रोवाइड कर सकता, दुकान को ताला लगा के घर चला दे। जो वायलेशन करेगा उसको बंद करेगा, उसके बाद देखेंगे कब खोलनी है कि नहीं खोलनी। जो ताजर अपने ग्राहक को कोई विदाउट मास्क आता है, कोई मार्केट के अंदर कोई विदाउट मास्क आता है और वो ग्राहक है और वो उसको मास्क ऑफर नहीं करते, वो बंद कर। फैसलाबाद में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया ने क्रैकडाउन करते हुए 342 दुकानें, 6 शॉपिंग मॉल्स, 11 रेस्टोरेंट्स और 30 दीगर दुकानों को सील कर दिया। चौक घंटा घर चौक पर भी मुतादिद दुकानों को सील कर दिया गया। उधर शहर भर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी एक्टिव हो गए। बगैर मास्क ड्राइविंग पर दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स थानों में बंद कर दी गयी।
रावलपिंडी में SOPs को खातिर में न लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद ड्राइवर्स को चालान थमा दिए। समाजी फासला कायम न रखने के जुर्म में ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ 18,000 रुपए जुर्माना किया गया। कामोकी में मुतादिद दुकानें, होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज बंद करा दी गयी। दीपालपुर में भी 10 दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई, जबकि SOPs पर अमल दरामद न करने पर 5 बसों और वैगन्स को 15,000 जुर्माना किया गया। गुजरावाला में इंतजामिया और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद SOPs की खिलाफ वर्जियों पर बंद होने वाली मार्केट्स खोल दी गयी। शरकपुर शरीफ में शादी की तकरीब में छापा मारकर सामान जब्त कर लिया गया, जबकि दुल्हा और दुल्हन के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना इमरजेंसी और पाबंदी के बावजूद सरकारी स्कूल्स में शादी की तकरीब सजाई गई। उधर इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और इंतहाई जरूरी अशिया की दुकानें खुलेंगी। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। लंदन की सड़कों पर हशाश बशाश और वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपने बेटे हुसैन नवाज के हमरा सड़कों पर घूमते नजर आए। चंद रोज कबल खानदान की कुछ खातीन के हमरा एक जगह पर चाय पीने की तस्वीर भी सामने आई थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन गए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। लंदन की सड़कों पर हशाश बशाश और वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब बरतानवी हुकूमत की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी आए थे, नवाज शरीफ अपने बेटे हुसैन नवाज के हमरा सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। दोनों तस्वीर में देखा जा सकता है कि अपने दाएं जानिब अगर आप देखें तो नवाज शरीफ इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि बार बार ये खबर में बताया जाता है कि वो अलील हैं, बीमार हैं, घर पर हैं। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आ रही है, लेकिन सेकंड फेज का भी इम्कान मौजूद है। शहरियों को हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में उलमा कराम और सियासी और समाजी इमादीन को आवाम में कोरोना वायरस के हवाले से बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। लंदन में नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में जनरल फिजिशियन डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट में हैं, और NHS जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस है बरतानिया की, इसमें 25 साल से जो वो खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की लेटेस्ट सिचुएशन बरतानिया के अंदर क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या बरतानिया से इस वक्त कोरोना वायरस तकरीबन ख़त्म हो चुका है? मैं ये तो नहीं कहूँगा अवान साहब कि ये ख़त्म हो चुका है, अलबत्ता इसको बड़े कंट्रोल्ड तरीके से इन्होंने इसको काबू करने की कोशिश की है। एक वक्त था जब रोज़ के 1000 मरीज़ मर रहे थे, अब वो रेट कम होके 300, 200 और 200 और 300 के दरमियान है, और प्रेडिक्शन ये है कि और नीचे जाएगा। अगर किसी पॉपुलेशन में 80% बंदे इन्फेक्ट हो जाएं या उनको किसी आर्टिफिशियल तरीके से उनको इम्यून कर दिया जाए ट्रीटमेंट से या वैक्सीन से, तो बाकी 20% ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। तो एक तो ये फिनोमेना कारआमद होगा। दूसरा, अगर सेकंड फेज़ आ रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब दुनिया की तमाम जो अक़वाम है उन्होंने ये सबक सीख लिया है कि अगर अब लॉकडाउन करना है तो वो कंप्लीट लॉकडाउन होगा, ताकि इसको जितनी जल्दी स्नब किया जाए वो बेहतर है। नस्ल परस्त बरतानवी शहरी पाकिस्तानी ड्राइवर पर शदीद बरहम हो गया। न सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि बदअखलाकी का मुजाहरा भी करता रहा। पाकिस्तानी ड्राइवर ने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए जवाब में एक लफ्ज़ तक न कहा। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तानी ड्राइवर की खंदा पेशानी पर शाबाशी दी। लंदन में बरतानवी सवार ने ड्राइवर को पाकिस्तानी होने की वजह से बुरा भला कहा और इंतहाई नामुनासिब सलूक किया। जवाब में पाकिस्तानी ड्राइवर ने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए एक लफ्ज़ भी न कहा। बरतानवी शख्स का ये गुस्सा पाकिस्तानियों की नफरत और उनको हकीर जानने की वजह से था। ड्राइवर से सवाल कर रहा था कि तुम पाकिस्तानी ये ख्याल करते हो कि तुम अफजल हो, जबकि भारत तुम पर बमबारी कर रहा है, जिस पर पाकिस्तानी ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और सब्र से काम लिया। जमाइमा खान ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके पाकिस्तानी ड्राइवर के रवैये की तारीफ की। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
فرینکفرٹ میں نو تعینات پاکستانی کونسلیٹ جنرل زاہد حسین نے میڈیا کے ساتھ خصوصی سیشن کا اہتمام کیا، جس میں ان کا کہنا تھا وہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہیں گے۔ PIA پروازوں کی بحالی، سیاسی پناہ کی درخواست دینے والوں کے پاسپورٹس کی جلد سے جلد انکوائری ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی پر اصغر مرزا نے رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ میں تعینات ہونے والے نئے کونسل جنرل زاہد حسین نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی اور اس موقع پر اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا فرینکفرٹ سے PIA فلائٹس کی دوبارہ بحالی، کونسلیٹ کی روٹین کے مطابق کونسلر سروسز اور اسائلم سیکرز کے پاسپورٹ کی جلد انکوائری ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا پاکستانی ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے اور وہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ کچھ دنوں سے جو ہماری کونسلر سروسز ہیں ان کا آغاز کر دیا ہے، لیکن چونکہ عوام کی صحت بھی ہمارے پیش نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو متعلقہ عملہ ہے اس کی صحت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہم نے اس کو ابھی محدود پیمانے پہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ پیپر ورک جو کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رکا ہوا تھا فلائٹوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ الحمدللہ میں کامیاب رہا۔ کل ہم نے بھجوایا ہے پاکستان، تو ہم نارملائزیشن سے پہلے نارملائزیشن سے زیادہ قریب تر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ جو ہماری سروسز ہیں یہ زیادہ تیز ہو جائیں گی۔ زاہد حسین کا کہنا تھا کونسلیٹ میں آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ محدود پیمانے پر سروسز شروع کر دی گئی ہیں۔ کورونا کے پیش نظر عوام اور عملے کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ شہری ویب سائٹ اور فون پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی خواتین و حضرات ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت پہ آپ تشریف لائیے، اور اکارڈنگلی ان کو پاسپورٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ آپ ای میل کے ذریعے ہم سے سوالات اپنے پوچھ لیجئے تاکہ ہمارا عملہ آپ کو جواب دے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کونسلر سروسز سے متعلق جو فائنل پروڈکٹ ہے لائک آپ کے پاسپورٹس ہیں، تو ان کی ڈیٹیلز ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، جن سے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بن چکا ہے، وہ تشریف لے آئیں اور اس کو کلیکٹ کر لیں۔ دیگر چیزیں بھی اسی طریقے سے ویب سائٹ پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ صحافیوں نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش شکایات سے آگاہ کیا تو ان کا کہنا تھا سٹاف کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات عملہ فون نہیں سن پاتا۔ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فون بھی اٹینڈ کریں گے اور وہی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی سروسز بھی دیں گے، تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں کام وہ اکٹھے کر پائیں۔ کورونا کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا موجودہ حالات میں ہمیں اپنی اور اپنے ارد گرد آباد لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میرا صرف یہی پیغام ہے کہ آپس میں اتفاق رکھیں، جو آپ کے ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی جو ایڈوائس ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی اس پہ عمل کیجئے تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں، آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں اور آپ کے گرد و نواح میں جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ سارے محفوظ رہیں۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے نام پیغام دیتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانی مل بیٹھ کر باہمی روابط کو فروغ دیں اور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ جرمنی میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے نئے تعینات کونسل جنرل کو خوش آمدید کہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی تعیناتی سے نہ صرف پاکستان کا وقار بلند ہوگا بلکہ پاکستانی کمیونٹی کو بھی سہولیات میسر آئیں گی۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر کا اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں ایک اور احسن اقدام۔ ملیشیا میں مقیم پاکستانی غریب بے بس مریضہ کی داد رسی کرتے ہوئے ہائی کمیشن کے اخراجات پر مریضہ کی فوری وطن واپسی کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ ملیشیا میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں پیش ہیں۔ ملیشیا میں مقیم پاکستانی غریب بے بس مریضہ کی داد رسی کرتے ہوئے ہائی کمیشن کے اخراجات پر مریضہ کی فوری وطن واپسی کے احکامات جاری کر دیے۔
बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी खतून सादिया दिलावर गुज़श्ता कई दिनों से शदीद अलील थीं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सादिया दिलावर में कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज की अलामात नमूदार हो चुकी हैं। मकामी हस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से दीगर अमराज का शिकार मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर सादिया दिलावर का इलाज फौरी तौर पर शुरू न किया गया तो उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। हाई कमीशन की इस अहसन इकदाम पर सादिया दिलावर ने 92 न्यूज़ के जरिए हाई कमिश्नर आमना बलोच और हुकूमत पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। शुक्रगुजार हूँ आमना बलोच साहिबा का, हाई कमीशन का, जिन्होंने मैं अकेली औरत थी यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत तकलीफ़ में थी और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं हुकूमत पाकिस्तान का और अल्लाह पाक इनको बहुत सारी तरक्की दे आमना साहिबा को। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और उनकी पूरी टीम को कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार पाकिस्तानी मेहनत कशों तक राशन की तरसील, मरीजों के इलाज मुआवजे, बेगुनाह कैदियों की रिहाई और वतन वापसी और दीगर मसाइल हल करने पर खराज तहसीन पेश किया। जब एम्बेसी से रब्ता हुआ है, एम्बेसी वालों ने बड़ी अच्छी हाई कमिश्नर ने सपोर्ट की और उन्होंने रात जो अभी पहली फ़्लाइट जा रही है इंशाल्लाह इसमें हम भेज देंगे और इन लोगों ने पहले भी बहुत से आदमियों को भेजा है। हमारी एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हर मुश्किल में खड़ी रही है हमेशा से, स्पेशली हर एक्सीलेंसी मिस आमना बलोच जब से वो आई हैं बहुत ही ज़्यादा इस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं, स्पेशली जो भी यहाँ पे कम्युनिटी हमारी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ खड़ी होती हैं। लॉकडाउन की वजह से मलेशिया ने हर किस्म की मामूल की बैन अल-अक़वामी परवाज़ों पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तानी मरीज़ा सादिया दिलावर ने जैसे ही पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता किया तो हाई कमिश्नर आमना बलोच ने PIA की 7 जून को कोलमपुर से इस्लामाबाद के लिए खसूसी परवाज़ के जरिए हाई कमीशन के ही अखराजात पर उन्हें फौरी पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त किया। जी, कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार मेहनत कशों के राशन का मसला हो, बीमारों का इलाज हो, कैदियों को वापस भिजवाना हो, पाकिस्तानी कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला जिस तंदही और दर्दमंदी से पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है वो यकीनन काबिल दाद और खराज तहसीन के लायक है। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। साउथ अफ्रीका से तीसरी खुसूसी परवाज़ लॉकडाउन में फंसे हुए 58 पाकिस्तानियों को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। खुसूसी तैयारे में साउथ अफ्रीका समेत 3 हमसाया ममालिक के मुसाफिर भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका और अफ्रीका के दीगर ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 2 माह के दौरान तीसरा खुसूसी त्यारा जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। जोहान्सबर्ग से रवाना होने से पहले मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सफारतखाना पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की हुकूमत का खसूसी शुक्रिया अदा किया। सारे पाकिस्तानी कम्यूनिटी लॉकडाउन की वजह से स्टक थे, लेकिन हमारे हाई कमीशन की मेहनत, डिप्टी हाई कमिश्नर स्पेशली अदनान जवेद साहब की और दूसरे भाइयों की मेहनत से हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमें घर जाना पड़ा, तो जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन और खुसूसी तौर पर तमाम पैसेंजर्स की तरफ से मैं अरसलान अहमद दिल की गहराइयों से पाकिस्तान एम्बेसी के अमले का, जिन्होंने अनथक मेहनत की है, दिन रात यहाँ पे काम किया है और हमारे लिए यहाँ पे आके उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की हम दिल से बेहद मशकूर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब, उनका मैं इंतहाई ममनून हूँ कि जिनकी वजह से ये उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करके तो आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के डिफ़िकल्ट टाइम में उन्होंने एक स्पेशल फ़्लाइट का अरेंज किया। स्पेशल तैयारी के लिए हम जो पाकिस्तान में जा रहे हैं, उस वजह से हुकूमत पाकिस्तान सफारतखाना और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर अदनान जवेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नसरा फाउंडेशन साउथ अफ्रीका और मकामी गवर्नमेंट के तावन पर उनका शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पाकिस्तान की तीसरी स्पेशल वैक्यूएशन फ़्लाइट है जो अपने शहरियों को वतन वापस लेकर जा रही है, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री की हर टाइम अवेलेबल सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हुआ है। और आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू द नुसरा फाउंडेशन who have always been extremely helpful for us to arrange this flight. In addition to that, I also appreciate the support of government of South Africa, which has helped us extremely in an extraordinary manner
to evacuate our citizens from the neighboring country. त्यारे में साउथ अफ्रीका समेत मोज़म्बिक, बोत्सवाना और स्वाज़ीलैंड में फंसे हुए 58 पाकिस्तानी सवार थे। त्यारा सोमालिया के शहर मोगादिशु से भी मजीद 58 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सऊदी अरब में ज़ेर तालीम तलबा ने वफाकी मोहतसब को ख़त लिखकर वतन वापसी की अपील कर दी। तलबा ने दरख्वास्त की है कि पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा सऊदी गवर्नमेंट को तलबा को वसूल करने का इजाज़तनामा फराहम करे। सऊदी जामियात के हॉस्टल बंद होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सऊदी अरब की मुख्तलिफ जामियात में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने वफाकी मोहतसब ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर अपनी मुश्किलात से आगाह किया है। तलबा ने गिला किया है कि मुतअद्दिद बार सफारत खाना पाकिस्तान और इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा से राब्ते के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में 2.5 माह बाद मसाजिद में बाजमात नमाज जुमा की अदायगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम हिफाज़ती तदाबीर अपनाते हुए अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद हुए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत मुमलिकत की 3,869 मसाजिद में 2.5 माह बाद नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। तमाम मसाजिद में नमाजियों ने मास्क और सैनिटाइज़र से हाथ साफ करके नमाज अदा की। उलमाए कराम ने इस मौका पर अल्लाह के हुजूर दुआ की कि अल्लाह जल्द इस वबा से दुनिया को महफूज बना दे। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।